ضمنی انتخابات کے لیے انتھک کوششوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کا مشکور ہوں۔ مریم نواز نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ پرامن انتخابات کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ پنجاب کے عوام کی مثال خدمت کا سفر اسی جذبے سے جاری رکھیں گے اور ان 16 صوبائی نشستوں پر مسلم لیگ نون کو مزید مضبوط کریں گے۔ تاریخ میں یہ پہلے انتخابات ہیں جن کی شفافیت پر بدترین سیاسی مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ امید ہے عمران صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف اپنے تضحیک آمیز رویے پر معذرت کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مالی سال 2022 میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ۔ جون میں ترسیلات زر بڑھ کر $2.76 ارب ہو گئیں۔ مجموعی طور پر مالی سال 2022 میں ترسیلات زر بڑھ کر $31.2 ارب ہو گئیں۔ یہ مالی سال 2021 کے مقابلے میں 6.1% زیادہ ہیں۔ بھارت کے 15ویں صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ۔ بھارتی پارلیمنٹ اور ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی خاتون امیدوار دروپدی مرمو جبکہ اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا مد مقابل۔ نتائج کا اعلان 21 جولائی اور حلف برداری 25 جولائی کو ہوگی۔ اور محکمہ موسمیات کی سندھ اور بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے سمیت خضدار اور کلات کی مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، شو کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن یہاں پر سب سے پہلے لے رہے ہیں ایک بریک۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست تریپورہ کے علاقے اگرتلہ میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے قبرستان پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں مندر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مقامی مسلمانوں نے قبرستان پر ہندو انتہا پسندوں کے قبضے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اگرتلہ اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ 4 سال میں اس نوعیت کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ تاہم ان واقعات میں ملوث ہندو انتہا پسندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بی جے پی کی حکومت میں بھارت اقلیتوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پالیسیوں پر بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, शो का करें के बाकायदा आगाज़। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए अनथक कोशिशों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वर्कर्स का मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म का कहना था कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पंजाब के अवाम की मिसाली खिदमत का सफ़र इसी जज्बे और तारीखी रिवायत के मुताबिक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की इन 16 सूबाई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को और मजबूत करेंगे। तारीख में ये पहले इंतखाबात हैं जिनकी शफाफियत पर बदतरीन सियासी मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इमरान साहिब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपने तज़हीक आमेज रवैये पर मुआज़रत करेंगे। शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पुख्ता यकीन रखती है और गुज़श्ता रोज़ का इंतखाब इसी का अमली मुजाहिरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान साहिब के पास वफाक और पंजाब की हुकूमत थी तो धांधली के रिकॉर्ड बनाए और 3 अप्रैल को इक़्तिदार बचाने के लिए आइन तोड़ा। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून ने वफाक और पंजाब में इक़्तिदार का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने, आइन पर हमले और आइन शिकनी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, पार्लियामेंट के 20 जुलाई को होने वाले मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। अब ये इजलास 22 अगस्त को सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। नाज़रीन, बैंक दौलत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि माली साल 2022 में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जून में तरसीलात ज़र बढ़कर 2.76 अरब डॉलर हो गई, जो माहाना बुनियाद पर 18.4% और सालाना बुनियाद पर 1.7% इजाफे को जाहिर करती हैं। जून में तरसीलात ज़र ज़्यादातर सऊदी अरब 666 मिलियन डॉलर, मुत्तहिदा अरब इमारात 495 मिलियन डॉलर, बरतानिया 455 मिलियन डॉलर और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका 285 मिलियन डॉलर से आईं। मजमूई तौर पर माली साल 2022 में तरसीलात बढ़कर रिकॉर्ड 31.2 अरब डॉलर हो गई हैं, जो माली साल 2021 के मुकाबले में 6.1% इजाफे को जाहिर करती हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, जिसमें नाज़िया एक नहायत खुशकुन खबर ये है कि तरसीलात ज़र जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी भेजते हैं पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में, उसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा होता हुआ हमें नज़र आया है, जिसका भी हमने नाज़रीन से शेयर भी किया। तरसीलात ज़र अगर बढ़ती हैं तो डेफिनेटली एक तो ये कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो है हम ये देखते हैं कि जैसे ही फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बढ़ते हैं आपके, उस तरह आपकी मईशत जो है वो मजबूत होती है। क्योंकि नाज़िया भी हम देख रहे हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के बारे में ही ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम रह गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादा होना जो है वो अच्छी मईशत की, मजबूत मईशत की निशानी होता है। और उसमें डेफिनेटली और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना है, हमारी मईशत का मजबूत होना है, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अपने पाँव पर खड़ा होना है। लेकिन उसके साथ साथ एक एडिड जो हमें एडवांटेज मिलता है वो ये कि पाकिस्तान की बहुत सी मैन पावर बाहर ममालिक में है, जिसमें ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट का रीजन जो है वो पूरा, उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अब काम कर रहे हैं। और फिर डेफिनेटली वहाँ जो उनको तनख्वाह की मद में या कारोबार की मद में जो मुनाफा मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो यहाँ पर डॉलर्स की शक्ल में कन्वर्ट होकर जब आते हैं तो हमारी मईशत मजबूत होती है। जैसे कि ये बड़ी अच्छी खुशकुन खबर है जो कि हम नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और रिजवान, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मोहब्बत है जिसका वो इजहार करते हैं, और जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल होती है, यकीनी तौर पे मईशत की बहाली, उसके इस्तेहकाम और आगे बढ़ने के लिए इनकी बड़ी अहमियत है और इनकी बड़ी ज़रूरत रहती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं नाज़रीन के तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेज है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बाहर से आते हैं वो पाकिस्तानी भेजते हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, तो उसमें हमेशा की तरह मिडल ईस्ट जो है वो अभी भी वो खित्ता नज़र आता है जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं।
اس میں نازیہ ایک تو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری جو پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ بینگ تھرڈ ورلڈ کنٹری، ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ زیادہ ہے، تو باہر جب وہ جاتے ہیں تو ایک تو روزگار ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تنخواہ یہاں واپس بھیجتے ہیں تو ایک تو لائف سٹائل جو ہے لوگوں کا، سٹینڈرڈ آف لائف لیونگ جو ہے وہ ہمارا امپروو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ مالی سال 2022 یعنی جو ابھی پچھلا گزرا ہے ناظرین، کیونکہ 2022-23 مالی سال جو ہے وہ اب 1 جولائی سے شروع ہوا ہے، تو اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا، اور خاص طور پر آخری مہینہ جو گزرا ہے اس میں تو بتایا جاتا ہے کہ 18.4%، جیسے کہ ناظرین نے آپ سے شیئر کیا کہ 18.4% اضافہ، اینڈ دیٹ از ونڈرفل، بہت زیادہ اچھا اضافہ ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نازیہ ابھی بھی بہت زیادہ کمی ہے، مزید جو ہے وہ جیسے برطانیہ میں بھی جو ہے بہت زیادہ سکوپ ہے، بہت زیادہ کیپیسٹی پوٹینشل برطانیہ میں امریکہ کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ ہے، تو فورن ایکسچینج ریزروز برطانیہ سے، امریکہ سے، ویسٹرن یعنی ورلڈ سے بہت زیادہ آ سکتے ہیں اگر پالیسیز ٹھیک رکھی جائیں، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کسی بھی طرح سے پراپر طریقے سے ایکسیس دی جائے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے فورن ایکسچینج ریزروز کی، فورن ریمیٹنسز کی، اس میں اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ بہت اچھا سائن ہے، خوشکن سائن ہے، لیکن ایک خبر جو ہے ہم آپ سے جو شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کورونا کے حوالے سے، اور اس میں اضافہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمی جو ہے وہ خوشکن ہوگی۔ بالکل ٹھیک، اور رضوان اگر اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کریں تو ایک نئی لہر جس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اور صرف اگر ہم 24 گھنٹوں کی بات کرتے ہیں تو 400 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جناب محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں، جو کہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، بیچ میں ڈیفینیٹلی جب کورونا ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا تو ریلیکس کر دیا گیا، ہر چیز کھول دی گئی، بازار، دکانیں، سکولز، کالجز، شاپنگ پلازاز، مالز، سب کچھ کھول دیے گئے تھے، ریسٹورنٹس وغیرہ، لیکن اب دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے شدید احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ غلط ہو سکتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم ایک دفعہ پھر کورونا کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب صورتحال اس وقت ہے کیا، یہ بتائیں گے تفصیل آپ کو محمد امنان اپنی اس رپورٹ۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے 492 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق کورونا کے باعث 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 20,361 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کورونا کے نئے مریضوں کی شرح 2.42% ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ پبلک مقامات پر سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے، اور ویکسینیٹڈ افراد اپنے قریبی سینٹر سے کورونا کی بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ احتیاط سے ہی کورونا کو مکمل شکست دی جا سکتی ہے۔ محمد امنان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے کی، ان میں تمام CEC کے اراکین بند کر دیں۔ بند کرا۔ جناب ملتان سینیٹر یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے اور جو ضمنی الیکشنز ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی اس وقت ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہوا ہے کراچی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں۔ اس حوالے سے کیا فیصلے لیے گئے ہیں، اس میں وہ ہائبرڈ اجلاس تھا، اس میں ورچوئل بھی خطاب کیا گیا ہے، ورچوئل شرکت بھی کی ہے، اور اس میں جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا لاہ عمل کیا بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اہم اجلاس کراچی میں ہوا، جس کی صدارت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے کی، اور جو یہ اہم اجلاس تھا اس میں ملکی صورتحال پر
گفت و شنید ہوئی اور اس پہ لائے عمل بنانے کی کاوشیں ہوئیں اور اس میں الیکٹورل ریفارمز ہوں، نیب ریفارمز ہوں اور ملک کی مجموعی صورتحال ہو، سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہوں اور خاص طور پہ جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے اس کی بابت جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہ کل ایک اہم اجلاس اتحادیوں کا ہوگا، جو حکومت اتحادیوں کی ہے اس کا ہوگا لاہور میں، جس کی نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر آصف علی زرداری صاحب کریں گے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت ہم مکمل جو اتحادی ہماری پارٹیز ہیں ان کو ہمارا مکمل سپورٹ ہوگی اور ہم ان کو اس مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی سیاسی لائے عمل اتحادی سب مل کر کریں گے وہ آپ کو اس کا جو منٹس ہوں گے آپ کو مل جائیں گے، کل کا جو فیصلے ہوں گے۔ تو باقی جو الیکشنز ہیں وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک مسلسل پروسیس ہے، اور پنجاب میں 20 سیٹیں جس پہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ 20 سیٹیں کیوں چلا رہے جو 20 سیٹیں جو جن پہ الیکشن ہوا وہ پی ٹی آئی کی تھی اور ان کی سیٹیں تھیں، اور اس میں سے 15 سیٹیں انہوں نے لیں، 5 سیٹیں جو تھیں وہ ہار گئے۔ تو لہذا جو ان کی جو سیٹیں تھیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا ہم حصہ تھے اور کٹھے تھے اس وقت ہم نے تقریباً تمام جو بھی ضمنی الیکشنز تھے وہ ان میں ہم کامیاب ہوئے، اور میں ان کو ایفرٹ جو ہے ان کی مسلم لیگ کی ان کو میں سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کمپین کی، اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ نے وائس پریزیڈنٹ نے بہت اچھی ایفرٹس کی، اور وہ ہر الیکشن کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے وہاں تک پہنچے، اور ہار جیت ایک حصہ ہوتا ہے، یہ اٹس اے پارٹ آف دا گیم۔ اور اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی کو ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ ہم 20 کے 20 سیٹوں پر ہم مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کی مدد کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے جتنا بھی ممکن ہو سکا ہم نے 100% ان کے ساتھ ہم نے مدد کی اور ان کے کینڈیڈیٹ جتوانے کی پوری ہم نے کوشش کی۔ ان کا بیانیہ یہ تھا الیکشن سے چند دن پہلے کہ 18 سیٹیں ہمیں ہرایا جا رہا ہے، پھر کہتے تھے الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، اور پھر کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری مخالفت کر رہی ہے اور ہمیں ہرایا جائے گا۔ تو پھر آپ نے دیکھا جو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا اس پہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ یہ جو کہتے تھے کہ الیکشنز ول بی ریگڈ اور الیکشنز ول بی اسٹولن اور ہمیں ہرایا جائے گا، وہ ان کی بات نہیں بنی، بلکہ اب ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اتنا تنقید کرتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر، وہ اب ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کرایا الیکشن وہ بہت فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا۔ اور اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو سر یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تو غلط ثابت ہوا، فیئر الیکشن ہوئے، تو کیا اس پہ عمران خان نے اداروں پر اور الیکشن کمیشن پر جو کیچڑ اچھالا آپ سمجھتے ہیں قوم سمیت اداروں سے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم خود جان گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تمام جو لوگ تھے لیڈرشپ تھی وہ یہی بیان دیتے رہے کہ الیکشن جو ہیں وہ غلط ہوں گے اور الیکشن پہ ہمیں ہروایا جائے گا،
اور دھاندلی ہوگی تو وہ اب الٹ ہوئی ہے تو ان کو مطلب خود احساس ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نواز سینیٹر یوسف رضا گیلانی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے اتحادی جماعتوں کا ساتھ دیں گے. انہوں نے مسلم لیگ نون کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جو انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کاوشیں رہیں ہم ان پہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس پروگرام میں آتے ہیں. ساتھ رہیے گا. روز ایک نئی صبح نئے چہروں نئے انداز کے ساتھ آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے اور سید یوسف رضا گیلانی کی جو نیوز کانفرنس تھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کووڈ کے حوالے سے. کووڈ ڈیفینیٹلی کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسا رپورٹ ہو رہا ہے, WHO نے بھی اس کی سنگینی کو خاص طور پر محسوس کیا ہے اور WHO کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب آپ خیال رکھیں اور SOPs جو بڑا مشہور ہوا تھا ایک فریز SOPs کا وہ یہی تھا کہ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں, ماسک لگائیں, ڈسٹنس رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ. گو کہ ابھی اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ والی کیفیت ابھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ والی کیفیت شروع میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پوری دنیا میں اس کو بہت آسان لیا, بہت ایزی لیا, جس کی وجہ سے پھر یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو اب بھی ہمیں وہی کیفیت جو ہے وہ ایک قسم کی دوبارہ سے ان SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے, اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, اپنے آپ کو ڈسٹنس پر رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کیونکہ ابھی سب کچھ بند نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہ بند ہو. کاروبار زندگی جو ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. پوری دنیا میں چونکہ پھیلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان الحمدللہ ان چند ممالک میں سے ہے جہاں ابھی بھی جو شرح ہے کرونا کیسز کی وہ خاص اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس کو باقاعدہ اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کو سسٹین کرنا ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم حفاظتی تدابیر اور حفاظتی اقدامات اٹھائیں گے. نازیہ بالکل, اور رضوان یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ چھٹی ویو ہے اور کیونکہ صرف پاکستان کو اس نے ہٹ نہیں کیا بلکہ دیگر ممالک کو بھی اس نے ہٹ کیا ہے. ابھی یہ سٹارٹ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک سرج اس میں آئے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں احتیاطی تدابیر. رضوان آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو کوئی بھی آپ کو ماسک پہنا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا, ہاتھ کی صفائی اس طرح نظر نہیں آ رہی ہوگی, ڈسٹینسنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی اور سارے معاملات زندگی کیونکہ معمول کے مطابق چل رہے ہیں تو شاید ہم بھی SOPs کہیں دور رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب ہم نے دوبارہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے پھر وہ والے حالات پیدا نہیں کر دینے کہ سب کچھ بند ہو جائے اور پھر معیشت کا پہیہ پھر سست روی کا شکار ہو جائے. اپنی جان کو بھی بچانا ہے اور ساتھ اپنے ملک کے باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی اس چیز سے آگاہی دینی ہے کہ ابھی ماسک کا استعمال ہم نے کرنا ہے, ڈسٹینسنگ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. کوشش کریں کہ مالز میں ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہو, بہت زیادہ لوگوں اکٹھے ہوئے ہوئے ہوں, جہاں پر SOPs کا خیال رکھنا ناممکن ہو کیونکہ احتیاط ہی واحد علاج ہے. اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو پھر مسائل تو بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ کتنا لیتھل ہے رضوان,
अभी शायद ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। कहा जा रहा है कि जो पिछले वेरिएंट थे उससे कम लीथल है, लेकिन चूंकि अभी ये सर्ज उस तरह से नहीं है, रिपोर्ट तो हो रहे हैं और हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है शरह, लेकिन जो ये बढ़ेगा फिर ये अंदाज़ा हो सकेगा कि ये किस कदर इसकी सिवेरिटी कितनी है और ये कितना लीथल है। लेकिन इसका वाहिद इलाज यही है कि हम वही चीज़ें जो रिजवान भी बार बार कह रहे हैं और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से आपको बार बार कहते रहे हैं, इसको जो है आपने ज़रूर अमल दरामद इस पर करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें ज़रूर अमल दरामद करना चाहिए। और इसमें यह भी देखना है कि किस तरह से ना सिर्फ आपने, क्योंकि हम ये कहते रहे हैं, बाकायदा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने बहुत अवेयरनेस कैंपेन चलाई कोरोना के हवाले से 2020 में भी, 21 में भी, जब यानी कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने जिक्र किया नाज़िया कि द 6th वेव, तो हम बाकायदा नाजरीन को अवेयर करते रहे हैं। और उसमें जो अवेयरनेस कैंपेन में जो एक बहुत बड़ी बात हम करते थे वो यही करते थे कि ये सिर्फ आपने दूसरों को महफूज नहीं रखना, अपने आप को भी महफूज रखना है, या यूँ समझ लें कि सिर्फ अपने आप को महफूज नहीं रखना, आपने दूसरों को भी महफूज रखना है। तो आप जितना ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद करेंगे, और ये हर शहरी की इनफरादी जिम्मेदारी भी बनती है, इज्तमाई जिम्मेदारी भी है, इनफरादी जिम्मेदारी भी है, कि जब तक आप अपने आप को महफूज नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने आप को डिस्टेंस नहीं करेंगे, जब तक आप सीरियस और इसकी सोब्राइटी को, सीरियसनेस को, ग्रेविटी को महसूस नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है हमें इस पर कोरोना के केसेस में इजाफा होता रहेगा। अभी तक जो है कोरोना के केसेस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल हैं। पिछले 24 घंटों में 400 से ज़्यादा नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। गो के, जैसे नाज़िया आपने भी कहा कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, इसको कहा जा रहा है, ये ओमिक्रॉन का जो एक सब वेरिएंट इसको कहते हैं कि सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो इतना लीथल नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें इससे बचना है। और इससे बचने के लिए सबसे बेहतर इकदाम जो है वो यही है कि आप अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं, एहतियात करें, डिस्टेंस करें, कोशिश करें कि मोहतात रहें ताकि हम इससे बच सकें। बिल्कुल ठीक। और अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं आप तो ज़रूरी है ये वैक्सीनेशन, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है, अगर ये उस पर अटैक भी करता है तो इतना जानलेवा साबित नहीं होता। लेकिन अगर आप वल्नरेबल हैं तो फिर तो ये अगर अटैक करेगा तो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई अलामात हों तो अपने डॉक्टर से ज़रूर आप रुजू करें। ये ना हो कि घर में ही हम जो एक शुरू कर देते हैं ना रिजवान की, ये वाली गोली खा लें, ये वाली गोली खा लें। अगर कुछ सिवियरिटी फील हो रही है, फील हो रहा है कि कुछ नॉर्मल से हटकर है, तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और उनकी जो हिदायत है उस पर अमल करें, दूसरों को भी आप आगाही दें। और नाज़िया बिल्कुल, ये तो कोरोना का फैलाव जो है इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये तो रुक ही जाता है। एक और फैलाव जो पाकिस्तान के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, एक टेकिंग बॉम्ब साबित हो रहा है, वो है जनाब बढ़ती हुई आबादी। ये कहा जा रहा है, यानी जो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान इस बात को सीरियस नहीं ले रहा, पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहे कि ये दहशतगर्दी, तवानाई का बहरान, लोड शेडिंग, माशी बहरान, सबसे बड़े, इन सब बहरानों को पीछे छोड़ जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। जी जनाब, खानदानी मनसूबाबंदी, खुशहाल जिंदगी। बिल्कुल। इस्लामाबाद में वजारत सेहत के ज़रिए तमाम बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उसके हवाले से आगाही का एक सेमिनार हुआ है, और तफसील हमें बताएंगे फर्रुख भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। बढ़ती आबादी के हवाले से हफ्तावार तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नवंबर में दुनिया की आबादी 8 बिलियन से तजावज़ कर रही है। इस वक्त शऊर और आगाही की जरूरत है। उन्होंने कहा, खानदानी मनसूबाबंदी वक्त की अशद जरूरत है। खानदानी मनसूबाबंदी के मामले में उल्मा का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की आबादी 285 मिलियन हो जाएगी 2030 तक। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इसमें कुछ रिकमेंडेशंस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी ज़ेर गौर हैं, और मौजूदा हुकूमत भी इस पर पूरी फोकस है। प्लानिंग कमीशन हमारा जो है वो भी इस सिलसिले में मजीद इकदाम कर रहा है। पोलियो वर्कर्स पर हमलों के बायस इंसदादे पोलियो मुहिम में मुश्किलात का सामना है। इंसदादे पोलियो के हवाले से अवाम में आगाही की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत और प्लानिंग कमीशन का इस पर फोकस है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि हमें सबको बाशऊर पाकिस्तानी बनना है। ये बड़ा अहम पैगाम है, इसे हर जगह पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। फर्रुख भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाब बिल्कुल, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सिंसियर और सीरियस होने की ज़रूरत है। अच्छा नाज़िया, हमने देखा कि हुकूमत रियासत की ताकत जब इस्तेमाल करती है तो जो काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल हो जाता है। हमने देखा कि इसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा, पिछले में
बिजली का शदीद बहरान था, हुकूमत एडमेंट हो गई, हुकूमत डट गई कि हमने बिजली का बहरान ख़त्म करना है, तवानाई का बहरान ख़त्म करना है, हो गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि इन्होंने ये कहा कि जनाब हमने दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, दहशतगर्दी उसको ख़त्म करना है, हुकूमत डट गई, अफवाज पाकिस्तान डट गई और आखिरकार एक दिन जो है वो दहशतगर्दी से हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो निजात भी पा ली। तो अगर हम इतने बड़े बड़े मसाइल को हुकूमत की सिंसेरिटी और सीरियसनेस की वजह से, एक एडमेंट्स की वजह से अगर हम इस पर काबू पा सकते हैं, तो अगर हुकूमत आज डट जाती है और हर हुकूमत कि जनाब हमने बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना है, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस पर काबू ना पा सकें। बिल्कुल रिजवान, और हमें ये समझना होगा कि हम इतनी बढ़ती हुई आबादी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमारे वसाइल इतने नहीं हैं, फिर आखिरकार हमारा माशरा जिसकी हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता, वो फिर मुमकिन नहीं है जब आपके पास वसाइल नहीं है और आबादी का एक तूफान है, तो फिर आप उसमें किस तरह से अपने वसाइल को इस्तेमाल कर सकेंगे। यकीनी तौर पर रिजवान आपने वजह की, इस पर समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इंडिविजुअली भी इस पर देखें और बात करें कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं रिजवान, बात करते हैं जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा करने वाले और मुल्क के जमहूरी सदर मुंतखब होने वाले नेल्सन मंडेला की, जिनका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन नेल्सन मंडेला की इंसानी हुकूक के लिए की गई जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल 18 जुलाई को उनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। मजीद तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी अपने इस रिपोर्ट में। रंग और नस्ल परस्ती के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में तवील जद्दोजहद करने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। उनकी यौम पैदाइश पर उनका आलमी दिन मनाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 2009 में किया था। स्याह फामों के हकूक के लिए तवील जद्दोजहद करने वाले मंडेला ने जेलें भी काटी, अपनों से दूरी का गम भी झीला और फिर बिर आखिर वो वक्त भी आया जब वो सन 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी और स्याह फाम सदर बने और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. उनकी हुकूमत ने नस्ल परस्ती से निपटने और इसे खत्म करने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन ये सब कुछ मंडेला के लिए इतना आसान नहीं था। 1952 में नस्ली इम्तियाज के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाने पर कई बार गिरफ्तार हुए। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद हुई और 27 साल कैद तन्हाई काटी। मुल्क में सोरिश के खदशे के पेश नजर इस वक्त के सदर ने उन्हें 1990 में रिहा कर दिया। नेल्सन मंडेला की अमन की कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें नोबल अमन इनाम, यूएस प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को इस दुनिया से रुखसत हुए। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत के 15वें सदर के इंतखाब के सिलसिले में भारतीय पार्लियामेंट और रियासतों की कानून साज असम्बलियों में वोटिंग जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर क़यादत इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने खातून उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जबकि अपोजिशन ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। नताइज का ऐलान 21 जुलाई को किया जाएगा। मुंतखब सदर 25 जुलाई को हलफ उठाएंगे। जहाँ महकमा मौसमियात कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। आइंदा 24 घंटे के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम ज़ेरी सिंध, मशरक़ी बलूचिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी नाज़रीन, इस वक्त ये इन तमाम पंजाब के हवाले से मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर बात करने के लिए मोहम्मद चौधरी असलम साहब, आप डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात लाहौर के, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी असलम साहब। जी वालेकुम जी। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। कुछ ज़रा शेयर कीजिएगा, मौसम दोबारा से हमें गर्म हो रहा है, गर्म हब्स बढ़ता जा रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है और जो भी पिछले हफ्ते 2 हफ्तों में मौसम रहा उस रोमांस से हम बाहर निकलते हुए दोबारा गर्मी में जा रहे हैं। तो क्या रहेगा पंजाब का मौसम, लाहौर का मौसम, ज़रा शेयर कीजिएगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, जो पिछला स्पेल जो भी आपने जैसे कहा कि वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो अभी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कोई ख़ास जो है रेन नहीं होगी अगले 30 घंटे के दौरान, लेकिन 30 घंटे के दौरान हब्स होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। जैसे लाहौर में जो है वो
35 سے 40 के दरमियान होगा। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर इसी रेंज में रहेगा और ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, 50% तकरीबन पूरा दिन ही रहेगी एवरेज जो है। लेकिन 30 घंटे के बाद यानी 20 तारीख को एक मानसून का सिस्टम फिर एंटर होगा पाकिस्तान में। वो लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश देगा और अच्छी बारिश उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा चौधरी असलम साहब, जरा ये बताइएगा कि जो स्पेल आपने बताया कि 20 से शुरू होगा, उसके बाद ये जो ह्यूमिडिटी है इसमें कोई फर्क आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तो गर्मी की कोई और ही हिद्दत महसूस हो रही थी कैपिटल में, तो लाहौर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर क्या हालात होंगे? लेकिन ये जो ह्यूमिडिटी है ये कब तक कम हो जाएगी? ये बड़ी सिवियर महसूस हो रही है। देखिए, ये ह्यूमिडिटी तो अभी मानसून शुरू हुआ है, तो ये जो बे बंगाल जो अरेबियन सी से ये तो आती रहेगी अगले 2 महीने तक। लेकिन जब बारिश होती है तो उसमें टेम्परेचर कम होता है, तो हमें लगता है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल कोई 90 to 100% के दरमियान होता है। लेकिन जब टेम्परेचर को 30 जैसे नीचे आता है तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो ह्यूमिडिटी का लेवल तो बरकरार रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद जो है ये फिर मौसम खुशगवार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, जैसे आपने फरमाया कि 20 तारीख को एक नया मॉनसून का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि ये जो सिस्टम है ये कहाँ कहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, इसकी शिद्दत कितनी होगी, इसकी ड्यूरेशन, इसका जो टाइम स्पैन होगा वो कितना होगा और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रहेगा? ये अभी तो जो हम कह रहे हैं कि 20 को जो है ये सिस्टम एंटर होगा, तो ये इसमें तो पंजाब, अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब और अपर KPK यहाँ से ये शुरू होगा। तो ये अगले 3 से 4 रोज फिर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन फैल जाएगा और अच्छी बारिशें देगा पूरे पाकिस्तान में। सही। अच्छा चौधरी साहब, ये ज़रा शेयर कीजिएगा, जनूबी पंजाब है, सिंध के मैदानी इलाके हैं, जो बिल्कुल एग्रीकल्चर बेल्ट है, आप बेहतर समझते होंगे, वहाँ किसानों के लिए जो इस वक्त फसलें कुछ बोई जा रही हैं, कुछ काटने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, कुछ काटी जा रही हैं, वहाँ के किसानों के लिए अगर आप कुछ मौसम के हवाले से गाइड कर सकें, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि वहाँ आने वाले 4-5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा जनूबी पंजाब और जो सिंध के मैदानी इलाके वहाँ पर? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में कोई 21 तारीख के बाद वहाँ पे बारिशें होंगी और वहाँ पे भी अच्छी बारिशें होंगी और 24-25 को फिर यही सिस्टम एक जो सिंध और जो लोअर सिंध और अपर सिंध दोनों में चला जाएगा और वहाँ पे भी अच्छी बारिशें होगी। और आजकल कपास की फसल है जैसे जनूबी पंजाब में आपने कहा, तो उसके लिए ये बारिश जो है ये बड़ी अच्छी होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर अच्छी नहीं होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उस इलाके के लिए ये रहमत ही साबित होगी। जी बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब, आप डायरेक्टर मेट लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे हमें कि अगले आने वाले दिनों में यानी एक अच्छी खबर उन्होंने हमें दी कि जनाब बेहतरीन हो गया है और 20 तारीख को यानी परसों से, आज अगर 18 है तो परसों से जो है वो मौसम कुछ तब्दील होगा दोबारा से और बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन शुरू में 1 आध दिन के बाद वो पूरे मुल्क में फैल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। नाज़रीन, शिमाली बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन आज सुबह कमज़ोर होकर हवा के कम दबाव में तब्दील हुआ है। ये हवा का कम दबाव कराची के जनूब मगरिब में मौजूद है। इसके ज़ेरे असर आज भी कराची, हैदराबाद और ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों तक समंदर नाहमवार रहेगा, जिसके बायस सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीर खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में सबसे ज़्यादा 65 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 50.5, कायदाबाद में 35.5, जिना टर्मिनल में 34.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी का काम मुकम्मल किया जा चुका है, ताहम नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम जारी है। नाज़रीन, मॉनसून बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू होने का इम्कान है। मरी, गिलियात समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरसेगा। जी नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। NDMA भी मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर चुका है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक इस्लामाबाद से। बादल एक बार फिर बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने फिर पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, सिंध और पंजाब में मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम कराची, रावलपिंडी, गलियात,
मरी समेत बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। NDMA का कहना है कि मुतल्लिका महकमे मकामी आबादी को अर्बन फ्लडिंग के खतरात और एहतियाती तदाबीर से मुसलसल आगाह रखें। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इंडोनेशिया में G20 ममालिक के वज़ीर ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स का अहम इजलास हुआ है। यूक्रेन रूस जंग के तनाजुर में होने वाले इजलास में शुरका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी कसाद बाज़ारी की बड़ी वजह जोग्राफियाई सियासी कशीदगी है, जिसके बाइस दुनिया को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस वक्त ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है। कोई भी मुल्क तनहा इस मसले को हल नहीं कर सकता। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, वबा और कुदरती आफ़ात जैसे मसाइल में मुल्कों के दरमियान ताउन ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमें इस मसले को ताउन और कसीर जहती जज्बे के तहत हल करने की ज़रूरत है। और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि श्रीलंका में 60 लाख से ज़ायद अफराद को खुराक की कमी का सामना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि श्रीलंका की 28% से ज़ायद आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और किल्लत का शिकार है। बहरान जारी रहने की सूरत में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। WFP की रिपोर्ट में बताया गया है कि 65,000 अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि 50,30,000 से ज़ायद अफराद को अपनी खुराक कम करना पड़ रही है। श्रीलंका में ग़िज़ाई अफरात ज़र की शरह में 80% इजाफा देखा गया है। 5 में से 2 घरानों की आमदनी गुज़श्ता 3 माह के दौरान निस्फ रह गई है। WFP का कहना है कि 30.5 लाख अफराद तक इमदाद फराहम करने के लिए फौरी तौर पर 6 करोड़ 30 लाख डॉलर की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ एट 6 शो का वक्त ख़त्म हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे कई खबरों के साथ। आप हमारे साथ रहे, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।